ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری نند چھوٹی چھوٹی خوشبودار تیل کی بوتلیں بیچتی تھی۔ وہ بوتلیں ایک انگلی جتنی ہوتی تھی، لیکن لوگ لاکھ لاکھ روپے دے کر خریدتے تھے۔ سنا تھا کہ جو بھی اس تیل کا ایک قطرہ بھی خود پر لگاتا وہ سدا حسین اور جوان رہتا تھا۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگتی تھی، اور پھر ایک دن میرے سسر نے کہا کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے کیونکہ ساس اب بدصورت ہو چکی ہے۔ میرے ذہن میں ایک پلان آیا اور میں نے نند کی چھوٹی بوتلوں میں سے ایک چوری کی اور ساس کو چند قطرے لگا دیے۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسی وقت کسوا کی جب سے شادی ہوئی تھی وہ اپنے سسرال والوں کے رویے پر حیران ہوتی تھی۔ اس کے سسرال میں اس کا شوہر، اس کی نند اور ساس سسر رہتے تھے۔ کافی خوشحال گھرانہ تھا۔ تبھی اس کے گھر والوں نے خوشی خوشی رشتہ کرنا منظور کر لیا، کیونکہ وہ لوگ اتنے خوشحال نہ تھے۔ اس کی شادی بھی ایک عجیب طریقے سے ہوئی تھی۔ کسوا کے شوہر کا ایک دوست تھا۔ اس کے گھر والوں کو کسی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی کی تلاش تھی۔ اس کے دوست کی ڈیمانڈ تھی کہ لڑکی خوبصورت ہو، بے شک جھگی میں ہی رہنے والی کیوں نہ ہو۔ اس کے گھر والے اسے لڑکیاں دکھانے لگے۔ کسوا کے گھر والوں نے رشتے والی ماسی کو کسوا کے لیے کوئی اچھا رشتہ لانے کا بولا ہوا تھا۔ اس عورت کو بھی انہی لوگوں نے اپنے بیٹے کے لیے کسی خوبصورت چاہے غریب ہو ڈھونڈنے کا کہا۔ کسوا خوبصورت بھی تھی اور ایم اے تک پڑھی ہوئی تھی۔ لڑکے نے اپنی پھپھو سے کہا کہ گھر والوں کو میں لڑکی دیکھنے نہیں لے کر جانا چاہتا، وہ ویسے ہی ہر لڑکی کو دیکھ کر مجھے مجبور کرنے لگتے ہیں کہ بہت اچھی ہے، ہاں کر دو۔ ساتھ اس نے اپنے دوست عامر کو بھی ساتھ چلنے کا بولا۔ ادھر عامر کے گھر والے بھی اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ عامر نے بھی اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ وہ بھی لڑکی دیکھ کر پسند کرے گا۔ گھر والوں نے عامر کے سامنے خاندان بھر کی لڑکیوں کے نام گنوا دیے، مگر اس نے سب ریجیکٹ کر دیے اور ان سے کہا تھا کہ اسے ابھی شادی کی اتنی جلدی نہیں، اس لیے ابھی اس کے لیے لڑکی دیکھنی بند کر دیں۔ ابھی وہ تھوڑا عرصہ آزادی کی زندگی جینا چاہتا ہے، پھر شادی کر کے بیوی بچوں کی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے۔ عامر دوست سے بولا، یار میرے اور تمہارے خیالات کس قدر ملتے جلتے ہیں، مگر مجھے تیرا یہ طریقہ ناپسند ہے کہ تم کوئی 10 رشتے لوگوں کے گھروں میں جا جا کر دیکھ چکے ہو اور ان کے گھر چائے پانی پی کر آخر میں ریجیکٹ کر کے آ جاتے ہو، ان کا اتنا خرچہ بھی کرواتے ہو۔ اس کا دوست بولا، یار اب جہاں رشتہ دیکھنے جانا ہے تو وہاں وہ لوگ پھر سوکھے منہ تو نہیں بٹھائیں گے نا، چائے پانی تو پلائیں گے نا، اسی لیے چائے پانی پی کر میرے گھر والے کہنے لگ جاتے ہیں کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ادھر ہاں کر دو۔ عامر نے کہا، میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں، تیرے ساتھ کھیل کر بڑا ہوا ہوں، تو بہت کمینہ اور لالچی ہے۔ اگر تو میرا بچپن کا دوست نہ ہوتا تو میں تجھ سے دوستی کبھی نہ کرتا۔ عامر کا دوست اونچی آواز میں کہکا لگا کر بولا، یہ بات تو تم ہمیشہ سے ہی کرتے آئے ہو، مگر کبھی تم نے مجھے چھوڑا نہیں۔ عامر اس کی کمر پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولا، بس یار بچپن کی انسیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، نکلتی ہی نہیں، مگر دیکھ میں ہمیشہ تیرا بھلا چاہتا رہا ہوں اور تجھے اچھی نصیحت ہی کرتا رہوں گا کہ شاید تم سدھر جاؤ، کسی دن تمہیں کسی لڑکی کی آہ نہ لگ جائے جن کو ریجیکٹ کر کے ان کا ایک دم دل توڑ کر تم آرام سے اٹھ کر آ جاتے ہو۔ میں نے بھی اپنے گھر والوں سے کہہ رکھا ہے کہ میں شادی اپنی پسند سے کروں گا، مگر تمہارے طریقے سے نہیں کہ 10 گھروں میں جا جا کر انہیں انکار کر کے آ جاؤں۔ اگر کسی نے کوئی رشتہ بتایا تو بہانے سے دیکھوں گا، نہ کہ پیٹ پوجا کروا کر ناپسند آئے تو کھایا پیا حرام کر کے تیری طرح اٹھ کے آ جاؤں۔ 100 بہانے ہو سکتے ہیں، لڑکیاں باہر بھی تو نکلتی ہیں، اس لیے اگر ان کے گھر جانا بھی پڑ جائے تو ان سے سختی سے کہہ دوں گا کہ آپ کے گھر کا پانی بھی ہم پر اس وقت تک حرام ہے جب تک رشتہ پسند نہ آ جائے۔ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے، پھر کوئی قسم کے نام سے زبردستی نہیں کرتا۔ اگر پسند آئی تو شوق سے چائے پی لیں گے، نہ آئی تو کم سے کم یہ افسوس تو نہ ہوگا کہ ان کا مفت میں خرچہ کروا دیا۔ چل اب ادھر بھی تم نے یہی کہنا ہے جن کے گھر جا رہے ہیں۔ وہ بولا، یار ایسی بات پھپھو کہاں کہیں گی، وہ تو میرے ہر رشتے دیکھنے میں ساتھ جاتی ہیں اور خوب پیٹ پوجا کر کے آتی ہیں۔ عامر نے اسے کہا کہ یار جیسے وہ کہتے ہیں کہ اپنے بچپن کے دوست کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ عامر کا دوست ہنس کر زور سے بولا، اس لیے کہ وہ کمینہ سارے راز جانتا ہے۔ پھر دونوں کہکا لگاتے ہوئے چل پڑے۔ عامر نے کہا کہ یار تو نہیں سدھرے گا۔ پھر عامر نے کہا، یار راستے سے مجھے کچھ کھانے کو لے دے، بہت زور کی بھوک لگی ہوئی ہے، میں گھر ہی جا رہا تھا کھانا کھانے کے لیے۔ عامر نے کہا، یار تم چلو تو صحیح، تمہارا وہاں اچھے سے پیٹ بھی بھروا دیں گے، آخر ہم لڑکے والے ہیں، لڑکی والوں کے گھر رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ پھپھو کہتی ہیں کہ یہی موقع ہوتے ہیں، رشتہ دیکھنے جاؤ اور خوب پیٹ پوجا کرو۔ جا بھی ہم دوپہر کو رہے ہیں، اگلے کھانا بھی شاید کھلا ہی دے۔ عامر کو اس کی سوچ پر بہت افسوس ہوا۔ جب وہ لوگ لڑکی والوں کے گھر پہنچے تو عامر نے دیکھا کافی سلجھے ہوئے لوگ لگ رہے تھے۔ سب نے ان کی بہت عزت کی اور ان کے دادا لاؤنج پہ بیٹھے بھنڈی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ عامر نے گزرتے ہوئے سلام کیا تو وہ اٹھے نہیں، بس جواب میں ہونٹ ہلا دیے اور ہاتھ ملا لیا
आमिर खुश होकर दोस्त से बोला, यार भिंडी पकी है जो मेरी बहुत फेवरेट है, प्लीज भिंडी खाने से मना न करना। खाना खाने के बाद उनके दादा बड़े तपाक से मिले और माजरत की कि मैं इस वक्त खाना खा रहा था इसलिए सलाम का जवाब नहीं दिया। और सुनाई कैसे आना हुआ? फूफा ने कहा, हम आपकी बेटी के सिलसिले में आए हैं। रिश्ते वाली मासी ने बताया था कि आप लोग भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं। दादा ने कहा कि हमने अपनी पोती के सिलसिले में उससे कहा हुआ है, मगर उसने आप लोगों की आमद का हमें नहीं बताया। फूफा ने जवाब दिया कि हमने मासी से एड्रेस तो ले लिया था, मगर हमने फ़ोन नहीं किया कि आप लोग तकल्लुफ़ात में न पड़ जाएं। वो बोले, जी अच्छा किया, आपका अपना घर है, जब चाहें आप आएँ। ये बताएं कि खाना खाया कि नहीं। फूफो बोली, इस तकल्लुफ़ को रहने दें। वो बोले, खाने का वक्त है और अब तकल्लुफ़ का वक्त भी नहीं, अब जो कुछ पका है वही हाजिर कर देते हैं। आमिर झट बोला, जी अंकल, जी बिल्कुल। फूफो और आमिर का दोस्त कुछ न बोले। फूफो कोसने लगी कि उससे अच्छा था कि फ़ोन करके आते, कुछ एहतमाम तो वो लोग कर लेते। 5 मिनट के बाद एक लड़की बड़ी सी चादर अपने इर्द गिर्द लपेटे तकरीबन घूंघटी जैसा निकाले हुए आई तो वो सादा पानी के ग्लास ट्रे में रख कर लाई। किस्वा की माँ इन लोगों से मिलकर इधर बैठ चुकी थी और दादा भी आकर बैठ गए। दादा ने लड़की का तारुफ करवाते हुए बताया, ये उनकी पोती किस्वा है। उसने सलाम किया और सबको पानी पकड़ाने लगी। तो दादा ने कहा, बेटा तुम रख दो और जाकर भाभी की कुछ खाने में हेल्प करो। वो ट्रे टेबल पर रखकर तेजी से बाहर निकल गई। किस्वा की माँ ने कहा, बहन जी पानी पी लीजिए। फूफो ने नखरे से कहा कि मुझे प्यास नहीं है। आमिर ने झट ग्लास उठाया और गटागट पी गया। आमिर ने दोस्त से इशारा करके पानी का पूछा तो वो भी इनकार करने लगा। किस्वा की माँ ने फूफो से मुखातिब होकर पूछा कि आप किस बेटे के सिलसिले में यहाँ तशरीफ लाई हैं? फूफो ने आमिर के दोस्त की तरफ बड़े फख्र से इशारा करते हुए कहा, जी ये मेरा भतीजा है, काफ़ी मालदार है। वो तो इसका दोस्त है, इसे वैसे ही साथ ले आया है। फूफो ने नागवार सी शक्ल बनाकर कहा, क्योंकि आमिर का हुलिया भी दुरुस्त न था। वो ट्राउज़र और टी शर्ट पहने ही चल पड़ा था, जबकि आमिर के दोस्त ने पेंट कोट और टाई भी पहन रखी थी। उसने आमिर के हुलिये पर तनकीद करते हुए कहा था, यार इस हुलिये में मेरे साथ जाएगा? तो वो बोला था कि उन्होंने तुझे पसंद करना है, मुझे नहीं। तो आमिर के दोस्त ने मजाक उड़ाते हुए कहा था, कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा, मेरा मुलाजिम है ये। आमिर ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा था कि कह देना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस्वा के दादा ने पूछा, बेटा आप कितना पढ़े हुए हो और क्या काम करते हो? वो बोला, जी मैं अपना बिजनेस करता हूँ और अच्छा कमा लेता हूँ। वो फिर कुरेदते हुए पूछने लगे, फिर भी किस किस्म का बिजनेस है? वो बोला, अंकल मेरा कोई एक बिजनेस हो तो बताऊं, और तालीम कितनी है? फूफो झट बोली, जी काफ़ी पढ़ा लिखा है मेरा भतीजा। दादा ने पूछा, फिर भी कितना? क्योंकि हमारी बच्ची ने मास्टर किया हुआ है। फूफो झट से बोली, जी इसने भी मास्टर किया हुआ है। आमिर ने हैरान होकर फूफो को देखा जो FA फेल को मास्टर बता रही थी। इतने में किस्वा और उसकी भाभी खाना लेकर आ गई। फूफो ने देखा भिंडी के साथ गरम गरम रोटियां और सलाद और दही था। फूफो की शक्ल बन गई, कहने लगी, मैं तो भिंडियाँ नहीं खाती। दादा ने किस्वा से कहा कि बेटी आंटी के लिए रात का सालन शलजम का शोरबा पड़ा है, वो ले आओ। फूफो ने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे इतनी भूख नहीं है, मैं यही चख लेती हूँ। मगर जब वो खाने पर आई तो वो लोग पका पका कर गरम गरम रोटियां लाते गए और ये सब खाते गए। आमिर ने हाथ खींच लिया और दोस्त से आहिस्ता से बोला, बस कर दे यार, कितना खाएगा? पकाने वाली का हशर नशर हो गया होगा। फूफो बाहर निकल गई और दोस्त की अम्मी अब्बू को कहने लगी कि ये काफ़ी अच्छे लोग हैं, तुम बस इधर हाँ समझो, मैं इसे मनाकर इधर हाँ करवा कर आऊँगी। दोस्त की माँ बोली, हम तो शुक्र करेंगे कि ये कहीं माने तो। लड़की भी MA पास है, मैंने भी MA बता दिया, उन्होंने कौन सा डिग्रियां चेक करनी है। आमिर सोचने लगा, कितने अच्छे लोग हैं। आमिर का दोस्त कह रहा था कि मुझे लड़की कोई खूबसूरती की वजह से नहीं कह रहा था कि वो खूबसूरत हो, मुझे वो लड़की चाहिए थी जो दबी हुई हो और आगे लगी रहे। मुझे ये लड़की पसंद आ गई है। शक्ल की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर पुप्पो भी कह रही हैं कि सिर्फ दादा ज़रा खड़ूस है, उसे शादी के बाद ठीक कर लेंगे, बाकी सब शरीफ और दबू किस्म के लोग हैं। बस मैंने पुप्पो को हाँ बोल दी है। आमिर को इन लोगों के लिए अफसोस होने लगा कि ये शरीफ किस्म के लोग इन लोगों के काबिल नहीं हैं, मगर बेटी वालों की कितनी मजबूरियां होती हैं। अच्छे रिश्ते नहीं मिलते तो इन जैसे लोगों को पकड़ाने पर मजबूर हो जाते हैं। काश इनसे पहले मैं इधर आ गया होता तो कितना अच्छा होता। मैं कम से कम पढ़ा लिखा इंजीनियर तो हूँ, मगर अब तो मुनासिब नहीं कि मैं अपने बारे में सोचूं। दादा ने साथ ही घर वालों को चाय बनाने का हुक्म दे दिया। किस्वा पानी देने के बाद दोबारा नहीं आई थी। वो लोग आए भी उनके घर खाली हाथ थे। बहाना ये किया था कि उन्हें कह देंगे जल्दी में आ गए थे इसलिए कुछ ला न सके। पुप्पो का कहना था कि वैसे ही पैसे ज़ाया होते अगर लड़की पसंद न आती। आमिर इन लोगों की सोच पर हैरान होता था कि दूसरों के पैसे बेशक इन लोगों की खातरदारी पर खर्च हों, मगर इनके अपने पैसे बच रहे। वैसे तो बहुत महंगे कपड़े वगैरह पहनकर अपनी नुमाइश करवा रहे थे। आमिर सोचने लगा कि आखिर वो इन घटिया सोच वाले लोगों का साथ देने क्यों आ जाता है, और इसका दोस्त तो सुधरने का नाम नहीं लेता
تو وہ کیوں ایسے شخص سے دوستی کا رشتہ جوڑ کر اپنا امپریشن بھی خراب کرتا ہے؟ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، میں اس جیسے گھٹیا انسان سے دوستی چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ میرا کون سا اہم راز اس کے پاس موجود ہے کہ جن کا مجھے کوئی ڈر ہو؟ ان لوگوں کے ساتھ غلط کرنے میں اسے اجازت نہیں دوں گا اور نہ اسے جھوٹ بولنے دوں گا۔ ان لوگوں کا نمک کھایا ہے، اگر اس نے رشتے لینے کے لیے اپنی سچائی ان لوگوں سے چھپائی تو میں خفیہ آ کر سب بتا دوں گا۔ اگر پھر بھی ان لوگوں کو اعتراض نہ ہوا تو کم سے کم میرا ضمیر تو مطمئن رہے گا۔ اس کے دادا نے عامر سے بھی اس کی تعلیم وغیرہ اور نوکری کا بھی پوچھا تو عامر نے بتا دیا کہ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر لگا ہوا ہے اور گھر والے میرے لیے بھی رشتہ تلاش کر رہے ہیں، اور وہ بھی ابھی تھوڑا خود شادی لیٹ کر رہا ہے کہ ذرا آپ لوگوں جیسے کوئی اچھے لوگ مل جائیں تو پھر سوچوں گا۔ اس کے جواب میں دادا نے ایک سانس بھری اور سن کر خاموش ہو گئے۔ جب چائے آئی تو پپھو نے دیکھا اور ناگواری سے سرگوشی میں بولی، خالی چائے ہی لے کر آ گئے ہیں؟ عامر کے دوست نے کہا، فکر نہ کریں، شادی کے بعد خوب خاطرے کروایا کروں گا۔ پپھو نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، کافی اچھی کڑک سی چائے ہے، پی کر مزہ آ گیا۔ ویسے بھنڈی بھی کافی مزیدار بنی تھی۔ وہ لوگ ان کے پاس اب بیٹھ نہیں رہے تھے، بس آ جا رہے تھے، اس لیے عامر کے دوست اور اس کی پپھو کو تنقید کا خوب موقع مل رہا تھا۔ عامر حیران تھا کہ جب وہ لوگ آئے تھے تب تو وہ سارے آ کر بیٹھ گئے تھے، کسوا کے والدین، بھائی، بھابھی اور دادا، مگر پھر اب وہ صرف آ جا رہے تھے، بیٹھ نہیں رہے تھے۔ عامر کے دوست کی پپھو سرگوشی میں عامر کے دوست سے بولی، اب میں لڑکی کو بلوا کر چند باتیں اس سے پوچھتی ہوں کہ وہ صرف پڑھنے میں لگی رہی یا کوئی کام کاج بھی اسے آتا ہے۔ عامر کا دوست بولا، چھوڑیں پپھو، جانے دیں ایسی باتیں، وہ میں ڈنڈے کے زور پر اس سے سارا کچھ کروا لوں گا۔ چلیں اب چلتے ہیں، ان لوگوں کے پاس فالتو بیٹھ کر ان کو سر چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پپھو مذاق اڑاتے ہوئے بولی، ویسے کھلا پلا رہے ہیں یہ لوگ، سادہ کھانا پینا ہی، مگر ہیں سب بہت مزے کی۔ روٹی بھی اتنی نرم اور گرم گرم کھائی کہ مزہ آ گیا، میں نے زندگی میں اتنی مزیدار بھنڈیاں کبھی نہیں کھائیں۔ عامر کا دوست جوش سے بولا، فکر نہ کریں، اس سے پکوا کر آپ کو رجا دوں گا۔ پپھو پھر چائے کی تعریف کرتے ہوئے بولی، ویسے ایسی چائے بھی کبھی نہیں پی۔ عامر کا دوست پھر پپھو کو تسلی دیتے ہوئے بولا، صبر پپھو، چائے بھی روز ملے گی، بس اب جلدی سے ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں۔ پپھو نے پھر لالچ سے کہا کہ ہو سکتا ہے شاید ابھی کچھ اور کھانے کو مل جائے، وہ بھی مزیدار قسم کا۔ عامر بولا، اتنا کھا کر بھی ابھی گنجائش ہے کیا؟ ویسے مٹھائی لے ہی آتے، منہ کیسے میٹھا کروائیں گے؟ چل پیسے نکال، لڑکی کو شگن کے پیسے دینے ہیں۔ اس سے ناگوار سی شکل بنا کر 5000 کا نوٹ نکالا تو پپھو اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، پاگل ہو جو اتنا لٹانے بیٹھ جائیں؟ چل 1000 میں دے دوں گی، 1 تو دے دینا، کافی ہے۔ یہ ان کے لیے کیا کم ہے کہ ہم اتنی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر کے ان کے گھر کو چن رہے ہیں؟ دوست نے بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، میں نے تو اس کی شکل تک نہیں دیکھی۔ پپھو نے بھی ناگواری سے کہا، وہ چادر کا گھونگھٹ ایسے نکال کر 2 منٹ کے لیے آئی تھی تو میں نے بھی اکڑ میں اس وقت دھیان نہ دیا۔ عامر کے دل میں لوگوں کے لیے نفرت اور غصہ بھرا جا رہا تھا۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اب اس فضول انسان سے دوستی نہیں رکھے گا، آج کے بعد دوبارہ اس سے نہیں ملے گا، یہ تو اس بیچاری کی زندگی جہنم بنا دے گا، اس سے اچھا ہے کہ کنواری ہی بیٹھی رہے۔ اس نے دل میں دعا کی کہ یا اللہ ان شریف لوگوں کو ان کے ساتھ ناتا جڑنے سے بچا اور ان لوگوں کو ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ جب اس کی بھابھی برتن سمیٹنے آئی تو پپھو نے اسی بڑی اکڑ سے کہا کہ لڑکی کو بلاؤ، وہ تو زیادہ دیر رکی ہی نہیں، اسے شگن کی سلامی دینی ہے۔ دادا نے کہا، وہ سامنے نہیں آئے گی۔ پپھو نے ذرا برہم سے لہجے میں کہا کہ ہم نے اسے پسند کر لیا ہے اور ہم اب شادی میں جلد کرنے والے ہیں، ایسے میں وہ اپنے سسرال والوں کے سامنے کیوں نہیں آئے گی؟ ہم نے اسے سلامی دینی ہے، ہم نے تو اسے ٹھیک طرح سے دیکھا بھی نہیں، پھر بھی ہم اسے قبول کر رہے ہیں، وہ احسان جتانے والے انداز میں بولی۔ دادا نے کہا کہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے، ہم گرائے مہمان کی قدر کرتے ہیں اور آپ کو عزت دی، مگر چونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے مزاج نہیں ملتے، اس لیے معذرت کے ساتھ عزت سے آپ لوگوں کو یہاں سے جانے کا کہتے ہیں، کیونکہ ہم آپ جیسے لوگوں کو جن کو نہ وقت کی قدر ہے اور نہ ہی انسانوں کی، اس لیے ہمیں یہ رشتہ قبول نہیں، آپ کہیں اور رشتہ دیکھ لیں۔ پہلے تو تھوڑی دیر کے لیے عامر کے دوست اور اس کی پپھو کو سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ جو سن رہے ہیں وہ کیا سچ ہے، ان کے کان یہ کیا سن رہے ہیں کہ وہ لوگ نہ ان کی بڑی سی گاڑی اور نہ ہی قیمتی کپڑوں سے متاثر ہوئے ہیں، ورنہ وہ جن غریب گھروں میں ابھی تک گئے ان لوگوں نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، اور عامر تو پہلی بار ان کے ساتھ آیا تھا، مگر اپنے دوست سے یہ سنتا رہتا تھا کہ فلاں جگہ رشتہ دیکھنے گئے تھے، مگر وہ لوگ پسند نہیں آئے اور ہم انکار کر کے آ گئے۔ اس وقت عامر نے کبھی اتنا ان لوگوں کو سمجھا نہ تھا کہ وہ اتنا گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، وہ تو اتنے سالوں کی دوستی کا سوچ کر ہی پچھتا رہا تھا کہ کاش اس نے پہلے ہی ان لوگوں سے مراسم نہ رکھے ہوتے تو اسے اتنی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، وہ اسے بھی انہی لوگوں جیسا سمجھ رہے ہوں گے۔ پپھو کا یہ باتیں سن کر منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اس نے عامر کے دوست کی طرف دیکھا، دونوں ایک سکتے سی کی کیفیت میں آ گئے تھے۔ جب عامر نے اسے کہا، یار چلو اب چلتے ہیں، اب کیوں بیٹھے ہو،
पुप्पो एकदम चिल्ला कर बोली, आप लोगों ने खुद ही रिश्ते वाली मासी को रिश्ते के लिए बोला था तो हम लोग इधर आए हैं, वरना वो कभी ना आते। आमिर का दोस्त चिल्ला कर बोला, आप लोग ऐसा कैसे हमें इनकार करके हमारी इंसल्ट कर सकते हैं? हम अमीर कबीर लोग हैं, लोग तो हमें रिश्ता देने के लिए बेताब हैं। इसके दादा ने बड़े तहम्मुल से गला खंखार कर जवाब दिया कि माना हमने मजबूरी में रिश्ते वाली मासी को अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बोला था कि इसके लिए खानदान में भी और जानने वालों में भी कोई रिश्ता मौजूद ना था, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि रिश्ते वाली जो रिश्ता भेजेगी हम आंखें बंद करके उसे ही रिश्ता दे देंगे। हमारी बेटी है, हमें जो रिश्ता पसंद आएगा हम उसे ही देंगे। आमिर का दोस्त बोला, क्यों, हम में क्या कमी है, हम तो रिश्ता लेकर ही जाएंगे। आमिर उसे बाहर खींचने लगा तो उसने आमिर को धक्का दे दिया। आमिर जाकर गिरा और मेज का कोना उसके माथे पर लगा और काफी खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। दादा ने चिल्लाकर कहा, मार दिया लड़के को कमबख्तों ने। पुप्पो ने देखा तो जल्दी से आमिर के दोस्त से बोले, निकल जल्दी से यहाँ से। वो दोनों तेजी से निकल गए और आमिर को जब तसल्ली हो गई कि वो जा चुके हैं तो आमिर ने आंखें खोल दी। किस्वा जल्दी से फर्स्ट एड ले आई और किस्वा के भाई ने उसकी मरहम पट्टी कर दी और बोला, चलें आपको डॉक्टर के पास लिए चलते हैं। किस्वा के दादा ने परेशानी से पूछा, बेटा ठीक हो? मेरा पोता सही कह रहा है, आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। आमिर किस्वा के भाई का सहारा लेते हुए उठकर सोफे पर बैठ गया और बोला, मैं बेहोश नहीं हुआ था, बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था ताकि वो लोग आपकी जान छोड़ सकें। मुझे इतनी ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी। किस्वा ने कहा, पेन किलर गोली खा लें। उसने एकदम किस्वा की तरफ हैरत से देखा तो वो शर्मा कर इधर उधर देखने लगी। आमिर ने कहा, हाँ वैसे मुझे गोली खा लेनी चाहिए वरना दर्द बढ़ सकता है। किस्वा ने गोली निकालकर भाई को पकड़ाकर बाहर निकल गई। आमिर को किस्वा के भाई ने पानी दिया तो वो गोली खाकर जरा कराहते हुए बोला, अब मुझे भी चलना चाहिए इज्जत से, वरना मुझे भी। एकदम किस्वा के दादा उसकी बात काट कर बोले, अरे नहीं बेटा, तुम तसल्ली से बैठो, जब तबीयत संभले तब चले जाना। ऊपर से मौसम भी खराब हो रहा है, तुम कैसे जाओगे? बारिश भी बरसना शुरू हो गई है। तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें इस हालत में छोड़ कर चला गया। बेटा बुरा मत मनाना, तुम एक बाशऊर और सुलझे हुए लड़के लगते हो, तुमने एक ऐसा दोस्त बना रखा है। आमिर गुस्से से बोला, वो मेरा दोस्त नहीं है। फिर उससे दोस्ती करने की सारी वजह बताई और अपना इरादा भी बता दिया कि आज के बाद मेरा उससे कोई ताल्लुक ना होगा। किस्वा के दादा ने कहा कि बेटा एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मनाओगे ना? तुम हम सब घर वालों को बहुत पसंद आए हो। हम सब आपस में यही बात कर रहे थे कि ये लड़का तो काफ़ी सुलझा हुआ है, फिर ये ऐसे लोगों का दोस्त कैसे है? हमने तो उनको आते ही भगा देना था, मगर मेहमान नवाजी भी कोई चीज़ है। किस्वा के दादा ने कहा, बेटा हम तुम्हें अपनी फर्जंदी में लेना चाहते हैं, तुम हमें अच्छे किरदार के और ख़ानदानी लगे हो। किस्वा के अबू बोले, हमने तुम्हें देखकर ही अंदाज़ा लगा लिया था कि तुम में बनावट नहीं, तुम बहुत बाअखलाक हो। जिस तरह तुम किस्वा के दादा की इज्जत कर रहे थे किस्वा के नाम से, उसने हैरत से उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा कर बोले, वो जिसने तुम्हें अभी गोली दी थी उसका नाम किस्वा है, वही हमारी बेटी है। हाँ अगर तुम्हें पसंद का कोई मसला है या हमारी बच्ची पसंद नहीं या हमारा घराना, तो बिला झिझक इनकार कर सकते हो, क्योंकि ये एक दो रोज़ की बात नहीं, पूरी ज़िंदगी का मसला है जो मरवत में हाँ कह के नहीं गुजारी जा सकती। तुम अभी बेशक ना जवाब दो, सोच लो या घर वालों से मशवरा कर लो, फिर जो भी चाहे इनकार भी हुआ तो बता देना ताकि फिर हम किस्वा का किसी और जगह सोचें। आमिर ने झट कहा, जी नहीं, मुझे आते साथ घर का हर फर्द बहुत मुखलिस लगा, आप सब परफेक्ट हैं। मुझे खुशी होगी और मेरी खुशकिस्मती भी कि मुझे इतने हमदर्द लोग मिल रहे हैं। दादा ने पुरजोश अंदाज में उसे गले लगाकर शाबाश कहा। वो बोला, मेरे दोस्त को देखें, कुछ लोग बहुत बेफैज होते हैं, कभी किसी दूसरे की नेकी और खुलूस को नहीं गर्दानते, न उन्हें इंसानों की कदर होती है, बस अपने मतलब की पड़ी रहती है। दादा ने उकताए हुए कहा, छोड़ो इसके जिक्र को। किस्वा जिसे आमिर बहुत पसंद आया था और दिल में दुआएं कर रही थी कि दूसरे की जगह आमिर से रिश्ता हो जाए, इसकी दुआ कबूल हुई और वो बहुत खुश हो गई। आमिर उनसे इजाज़त लेने लगा तो दादा ने कहा, बारिश रुक गई है, मैं तुम्हें बाइक पर छोड़ भी आता हूँ और घर भी देख लेता हूँ। आमिर ने कहा, ठीक है। आमिर ने बाइक पर बैठकर कहा कि आप पीछे बैठे, मैं चलाता हूँ। जब आमिर घर पहुँचा तो इसके वालिदैन फिक्र से बोले, ये सर पर चोट कैसे लगी? बहन रोने लगी। माँ ने भी ऊंचा रोना शुरू कर दिया। उसने उन्हें बमुश्किल चुप करवाया। आमिर के अबू दादा को कुर्सी पर बिठा चुके थे। आमिर ने सारी बात बताई तो इसके अबू बोले, हमारा बेटा वैसे किसी की झूठी तारीफ नहीं करता, ये खुश तो हम भी खुश। आमिर के अबू ने दादा की बहुत इज्जत की, उनसे शादी तक के मामलात तय कर लिए और आमिर की हदायत पर एक टिके का जहेज लेने से सख्ती से मना कर दिया और कहा कि निकाह के लिए हम घर के अफराद ही आएंगे और निकाह करके सादगी से ले जाएंगे। हम ये रस्म शुरू करेंगे कि बेटियों के वालिदैन से ढेरों लोगों को बारात पर साथ ले जाकर इन पर बोझ नहीं बनाएंगे। फिर एक रिश्तेदार को बुलाओ तो दूसरा भी अहम लगता है, और ना ही मेहंदी की फजूल रस्म को अपनाएंगे। शादी का सिर्फ वलीमे का दिन ही एक रखेंगे, 3-4 दिन के फंक्शन ख़त्म करेंगे, आने वालों का भी खर्चा कम होगा
वक्त की भी बचत होगी और घर वाले भी मेहमानों की वजह से थकेंगे नहीं। दादा ने कहा, काश लोग ऐसा करने लगें तो 4-5 बेटियों के वालिदैन सुखी हो जाए। आमिर के वालिद साथ गाड़ी में दादा को छोड़ने गए और बाइक आमिर ने कहा अगले दिन पहुंचा देंगे। इसके अब्बू मामला तय कराए, शादी हो गई। काफी रिश्तेदारों ने गीले किए, बातें बनाई, मगर आमिर ने सबको जब दलील से समझाया तो कुछ ने तारीफ की, कुछ ने तनकीद की। किस्वा ब्याह करा गई। सब उससे खुश थे कि उसने सारा घर संभाल कर सबको सुखी कर दिया था। किस्वा की नंद कॉलेज में अपने बाप भाई से चोरी किसी सहेली से मिलकर कमीशन पर खुशबू वाली बोतलें बेचती थी और बकौल उसकी नंद के वो एक बोतल लाख लाख रुपए में बिकती है। उसकी दोस्त बहुत अमीर थी। किस्वा की नंद इन बोतलों को मोहल्ले के पार्लर और इधर उधर सेल कर लेती थी। किस्वा बहुत हैरान होती कि जो इस उंगली जितनी बोतल को मुंह पर लगाता है वो सदा हसीन और जवान हो जाता। आजकल घर में किस्वा के ससुर हर वक्त दूसरी शादी का अलाप गाने लगे। आमिर शादी होते ही 2 माह बाद ऑफिस की तरफ से मुल्क से बाहर चला गया था। अब ससुर को रोकने वाला कोई न था। ससुर कहता ये बूढ़ी और बदसूरत होती जा रही है। किस्वा सोचती, इतने अच्छे बेटे के बाप होकर ये क्या करना चाहते हैं। उन्होंने तो इसकी इतनी अच्छी तरबियत की थी। आमिर को कुछ न बताया गया। ससुर ने किस्वा को सख्ती से मना किया हुआ था। किस्वा सास से हमदर्दी रखती थी और उसे सोकन से बचाना चाहती थी। उसने देखा नंद की बोतलें बेचने में ससुर भी शामिल है और बेटी को खुद साथ लेकर जाते हैं और आमिर से छुपाया गया था। किस्वा ने एक प्लान सोचा और चुपके से नंद की एक बोतल छुपाकर सास से बोली, आप ये मुंह पर लगा लें, आप सदा हसीन और जवान हो जाएंगी और शोहर दूसरी शादी नहीं करेगा। सास बोली, मैंने खुद भी ये बोतल बाजार जाकर बेची है मगर मुझे खुद लगाने का ख्याल आया। उसने खुशी से वो बोतल का तेल मुंह पर लगा लिया तो किस्वा की हैरत की इंतहा न रही कि सास की 5 मिनट में ही झुर्रियाँ गायब हो गईं और वो पहले की तरह जवान और हसीन लगने लगी। ससुर जब कमरे में आए तो किस्वा कमरे में पहले ही जा चुकी थी। उन्होंने उसके हाथ में शीशी देखी तो हैरान रह गए और बेटी को जोर जोर से आवाज़ें देने लगे। वो भागती हुई आई, माँ के हाथ में शीशी देखकर रोने लगी कि ये आपने क्या किया। 2 माह बाद आपके मुंह पर दाने निकलने शुरू हो जाएंगे। ये तो आर्जी हुस्न देती है। ससुर को उसी वक्त दिल का अटैक हो गया और नंद रोने लगी। किस्वा ने मैके फ़ोन कर दिया। आमिर भी पहुंच चुका था। सास सबसे चेहरा छुपाकर मास्क लगाए रखती थी। आमिर पक्का आ गया था। नंद ने अपनी दोस्त को सारी बोतलें वापस कर दी। इसने मुआवजा बढ़ाने की ऑफर भी की मगर वो न माने। कुछ दिनों बाद उसकी नंद पकड़ी गई और उसने किस्वा की नंद का भी नाम लिया, मगर जब उसके घर की तलाशी ली गई तो सबूत न होने की सूरत में उसे छोड़ दिया गया। वैसे भी इसकी नंद जहाँ बोतलें बेचने जाती थी नकाब पहन कर जाती और अपना अता पता और नाम अपनी दोस्त का ही बताती थी। आमिर को जब सब पता चला तो उसने बहन को बहुत डांटा तो बहन ने रोते हुए माफ़ी मांग ली। आमिर माँ के स्किन स्पेशलिस्ट के पास ले गया और सारी बात बताई कि इस शीशी के लगाने से हुआ है। तो उसने बताया कि अच्छा किया जो उन्हें आप वक्त से पहले ले आए और इलाज शुरू करवा दिया तो इंशाल्लाह इसका ज़्यादा नुकसान ना होगा। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आए थे। इसकी माँ बर वक्त इलाज से बच गई और उसके चेहरे पर दाने निकले मगर ज़्यादा अरसे न रहे और जल्द ही वो अपनी असल हालत में आ गई। आमिर ने नंद की शादी खानदान में कर दी और वो अपने घर में खुश थे। किस्वा को आमिर ने बताया कि उसे सरेरा वही अपना दोस्त मिला था जिसका मुझ पर एक एहसान ये है कि उसकी वजह से मैं किस्वा जैसी अच्छी बीवी को पा सका हूँ। इतना अच्छा ससुराल मिला है जिसने मेरी गैर मौजूदगी में भी माँ बहन को सहारा दिया और मेरे वालिद की फौतगी के सारे इंतजामात को संभाल गए। मैं जब आया तो इससे कुछ भी करना न पड़ा। तो यही सोचकर मैं उससे मिला और ये देखकर हैरान रह गया कि उसके साथ उसकी बीवी थी जो काफ़ी गहरी सांवली रंगत की थी और वो बाइक पर था और लिबास भी मामूली था। उसने बीवी को घर छोड़कर उसे मिलने का वक्त मांगा। आमिर उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया, उसे खाना खिलाया जो उसने बहुत रुग़बत से खाया और कहने लगा कि काफ़ी अरसे बाद इतना महंगा खाना नसीब हुआ है, वरना रोज़ दाल सब्जी खा खा कर तंग आ चुका हूँ। मेरा हराम का पैसा इसी तरह लुट गया जैसे मैं लोगों को लूटता था। शादी भी मेरी धोखे से काम वाली से हुई। मैंने लालच किया कि चलो काली है तो खैर है। इसने अपने मालिकों का घर अपना बताया और मुझसे जल्दी से निकाह करके मुझे इस कोठी में रख लिया। मालिक मुल्क से बाहर थे और मुलाजिम इसके वालिदैन और घर वाले थे। सब ने मुझे अमीर समझ के फंसा लिया और फिर बच्चा भी हो गया। तब मैं एकदम सब कुछ लुटा बैठा और सड़क पर आ गया। बच्चा मेरी जान है, बहुत प्यारा गोरा है। बीवी की हकीकत भी खुल चुकी थी। इसने माफ़ी मांग ली और घर वालों ने कहा कि एक बच्चे को उसकी माँ ही पाल सकती है। वैसे भी तुम्हें अब लड़की किसने देनी है। इसी कोठी में अब मैं ड्राइवर हूँ और उनके सर्वेंट क्वार्टर में रहता हूँ। मैंने गरीबों के जज्बात रोंदे, उन्हें ठुकराया। उनकी बद्दुआएं मुझे लग गई हैं। वालिदैन गांव चले गए हैं अपने आबाई घर में। मैं शहर में रहकर बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ। सवाई ड्राइवरी के मेरे पास कोई तालीमी डिग्री या हुनर भी नहीं। आमिर ने उसे कुछ रकम दी और साथ कहा कि तेरे बच्चे को मैं अपने बच्चों के साथ इसी स्कूल में पढ़ाऊंगा जिसमें मेरे बच्चे पढ़ेंगे। वो रोने लगा और उससे माफिया मांगने लगा। वो रोते हुए बोला, मैं तुम्हें जख्मी करके चला गया था मगर छुपकर फिक्र में देखता रहा कि कहीं तुम मर तो नहीं गए।
मगर जब तुम्हें सही सलामत बाइक चलाते देखा तो तसल्ली हुई। हालांकि पुप्पो कोसती रही कि जल्दी चल, मगर मैंने उनको रिक्शे में भेज दिया। तुम काफ़ी देर बाद वहाँ से निकले थे। आमिर ने बताया, इसी लड़की से मेरी शादी हुई है और ये तुम्हारा एहसान है कि तुमने इतने अच्छे लोगों से मिलवा दिया। आमिर के दोस्त ने बहुत मुबारकबाद दी और बोला, भाभी को भी कहना कि मुझे माफ़ कर दें। आमिर ने कहा कि तुम अपनी बीवी बच्चे के साथ घर पर आना। वो बोला, मैं भाभी के सामने किस मुंह से आऊँगा। आमिर ने तसल्ली दी कि कोई पैदाइशी बुरा नहीं होता, तुम सुधर चुके हो। तुम्हारी जेब से नजर आती नमाज की टोपी देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुमने दीन की रस्सी को पकड़ लिया है। वो बोला, सच्ची बात है, अब रूखी सूखी खाने में भी पुरसकून रहता हूँ। जब ढेरों दौलत थी तो एक पल चैन न था। वाकई जो रब को दोस्त बनाता है, उसके हुक्म पर चलता है तो रब भी उसे अकेला नहीं छोड़ता। आमिर ने कहा, किस्वा मेरी बीवी भी मेरी तरह बड़े दिल की मालिक है और माफ़ करने वाली है। तुम बगैर किसी टेंशन के घर आना, वो तुम्हें और तुम्हारी बीवी को इज्जत देगी। तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। आमिर के दोस्त ने कहा, नहीं, मैं तुमसे दोस्ती रखने में फ़ख्र करता हूँ, मगर मैं अब थोड़े में खुश हूँ, सेट हूँ। मेरे ससुराल वाले सारे इधर ही हैं, तो बीवी और बच्चा खुश रहते हैं। आमिर ने किस्वा को जाकर सारी बात बताई तो वो बोली, मुझे किसी बात से एतराज़ नहीं, मैं उस बच्चे की तालीम का खर्चा उठाने में साथ दूंगी, जिनकी वजह से मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला। आमिर ने मोहब्बत से उसे देखा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।